लैंग्वेज लर्नर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने सीखे कुछ इंग्लिश फ्रेजेस रिलेटेड टू कॉल एंड टुडे आई एम हियर विद द वीडियो दैट इज अबाउट कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि आपको बोलना है यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, हाउ विल यू से? देयर इज नो प्लेस फॉर यू। यहाँ हम डालेंगे देयर इज नो रूम फॉर यू, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो जब हम जगह की बात करते हैं हम रूम लगाते हैं। सो हेयर वी हैव लॉट मेनी सेंटेंसेस जिसमें हम कुछ सिली एरर्स करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दैट। चलिए शुरू करते हैं। To begin with, we have today morning I woke up late. The here mistake is today. जब भी हम बात करते हैं इस सुबह, so we say आज, this. We don't say आज की सुबह या कुछ. We say this morning, not today. Next we have is I met Candy 2 years before. Guys, before का मतलब भी होता है पहले, लेकिन जब हम बात करते हैं before की तो हम उसके साथ कुछ लगाते हैं। Before I was graduated, before I got married, तो उसके साथ कुछ लगाया जाता है। इसलिए here we will not say before, we will say ago. I met Candy 2 years ago. Now we have this is 4 months course. जब भी आप बात करते हो इतने समय का, we don't say plural, हम months नहीं लगाते हैं, we say this is a 4-month course. This is $1 million project. Here we have I have a spare time. Guys, when we talk about time, time uncountable होता है, तो कभी भी a नहीं लगता. When you are talking about time, you will never use this article. Instead, you will simply say I have spare time. Next we have Priya has been absent from Friday. जब भी आप बात करते हो has, have, been, V1, ing की, तो आप कभी भी from नहीं लगाते हो। टाइम की बात करते हैं तो लगाया जाता है since या फिर for। अब here क्योंकि हम Friday की बात कर रहे हैं तो Friday is a specific time, तो specific time के साथ हमेशा since लगता है। So here our correct sentence will be Priya has been absent since Friday. Divide chocolates between children in the class. Between नहीं लगेगा क्योंकि between यूज करते हैं जब दो के बीच की बात हो रही हो, बट जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे। So here we will use among. जब दो से ज्यादा के बीच में बात हो रही होती है तो हम among लगाते हैं। So here not between, we will use among. Divide chocolates among the children in the class. Now we have I didn't meet nobody. Did not meet nobody. अब did not में already not आ चुका है तो अब nobody का यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनता है। So here we will use I did not meet anybody. मैं किसी से नहीं मिली। Now we have she is married with a doctor. No. जब आप बात करते हो marry word की तो marry के साथ हम लगाते हैं to. तो here we will say she is married to a doctor. He is married to a pilot. To, not with. Now we have this room is spacious enough for me. There we have a problem of word order. जब आप बात करते हो word order की तो हमारे words आगे पीछे होते हैं. We will say this room is spacious enough for me. This dress is good enough for me. This is bad enough. तो word order कहता है कि words बिल्कुल correct जगह पर होने चाहिए. So here we will say this room is spacious enough for me. Let's see the next one. Every student like the teacher. हर एक बच्चा, और जब एक बच्चे की बात होती है तो हम आगे लगाते हैं S. So we say every student likes the teacher. He likes everyone. जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो, सब्जेक्ट एक होता है तो उसका सिंगुलर लगाया जाता है। सिमिलरली एवरी मीन्स हर एक, वो भी सिंगुलर ही है। So here we will use S or ES with it. Now we have this is the way how I made it. जब आप वे और how को साथ लगा रहे हैं तो दोनों का अक्सर मीनिंग यही होता है कि किस तरीके से, तो हम दोनों को साथ यूज नहीं करेंगे। We will say this is how I made it, इस तरीके से मैंने इसे बनाया। So how और we साथ नहीं लगेगा। Last but not the least we have he was boring in the class. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं he की कि वो क्लास में बोर हो रहा था, लेकिन जब आप was boring की बात करो तो इसका मतलब है क्लास की बात हो रही है, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं he की, तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करेंगे। he was bored in the class. वो क्लास में बोर हो रहा था।
गाइस अब मैं यहाँ पे ये यकीन कर सकती हूँ कि आप मेरे साथ बोर तो नहीं हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस।